Yes, you can start. Hi, sir. Good evening. Good evening, friends. I have taken a motherhood break since last 14 years. This May, I started working after my course in digital marketing. This is an executive program I've done from IIM Calcutta, but to know the practical knowledge and to do work from home, practically how to, and to have work-life balance typically. How can I build more skills in digital marketing and earn through that? That's the reason I joined this course, and I wish to pursue this seriously. So I hope to have fun. Perfect. Shubhangi? Yes, am I audible? Yes, yes. Sorry, I think my camera is not supporting today. That's why it's showing black for you. So Okay, I'll fix it by tomorrow. Yeah, okay, so my name is Shubhangi, and currently I'm a teacher. I'm associated with Byju's and Coding platform. I have experience of more than 7 to 8 years in teaching, and now I'm planning to switch my career into digital marketing. Okay, perfect. Prashant? My name is Prashant Viradia, and I work in factory, which is like basically a mechanical job. I wanted to shift to like doing some like core engineering work. So I wanted to change myself a bit. So I am looking for this. Okay, okay, perfect. So Nikhil? Hello there. I'm working with Kindle India Private Limited as an administration department admin. I'm working as an admin last 9 years. So basically, I have planned to learn something new. As it's market demand, you have to grow up yourself by keep learning. So Yes. I chosen this, and let's see how it works for me. Yeah. Thank you. Perfect. Akriti? Good evening, sir. Good evening, all of you. Good evening. Actually, sir, I'm from Roorkee, Okay. and recently I'm married. So, मेरे actually ससुराल वाले ये चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, and then अभी मेरा pursuing है B.Tech. Yes. Okay. So, what do you guys want to do? आप सब जॉब में इंटरेस्ट हो या आपको फ्रीलांसिंग करनी है? I want to go for freelancing. Okay. I also want to go for freelancing, most probably. Me too. Okay. The reason, may I know the reason? फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हो और जॉब क्यों नहीं करना चाहते आप? Freelancing is more easy. Like you can do it from anywhere and no constraints are applied. I've been in the field where constraints are applied. Like you have to come to work every day and then like finish the task. Right. So freelancing is more easy. Exactly. Easy भी है और आपका आपका जो मेन गोल है जिसके लिए हम काम करते हैं तो वो भी आपका बढ़ जाएगा फ्रीलांसिंग में कम काम करके आप क्योंकि अभी हम फोकस अभी फ्रीलांसिंग पे ही ज्यादा कर रहे हैं हम आप ये कोर्स कंप्लीट करके जॉब भी ले सकते हो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो वो एट द एंड ऑफ द डे आपकी चॉइस होगी लेकिन 99% ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग ही सिलेक्ट करते हैं सो विल स्टार्ट विद आवर आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. Okay. So welcome to Level Up by Anom. Thank you so much for trusting us. Next अभी 40 दिन जो है 6 weeks जो रहेंगे हमारे वो बहुत आपके लिए important रहेंगे. आपको practical knowledge मिलेगा. At the same time theoretical knowledge मिलेगा. मार्केट का knowledge मैं दूंगा आपको. At the same time आपको implementation पे भी focus करना है. ये नहीं कि आपको सिर्फ मैं सिखाते जा रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं माइंडसेट मॉड्यूल इंक्लूड किया है हमने टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड किए हैं सब में जो हम बोलेंगे वो आप एंड तक करते रहोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है कोई भी आपको इसमें डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो और सो
I will tell you about us. First of all, we are an agency that are experts in digital marketing. We have worked with various clients in multiple industries like real estate, बोल सकते हो, coaches and consultants. Right now we are working in coaches and consultants. We have different niches of clients, and we worked with international clients also. And now we are working. We are focusing. We have 80% of clients who are international, and we crack tons of high ticket clients. It worked with different niches like social media marketing, ads, funnel design, graphic design, etc. अभी funnel design आपको अभी कुछ awareness नहीं होगा, तो वो आपको upcoming lectures में cover हो जाएगा. We have been working in this niche for 4+ years. तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग. अभी डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली बेसिक है क्या, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. जिसको पता है और जिसको नहीं पता वो सब अभी कॉन्सेंट्रेट करें. द टर्म डिजिटल मार्केटिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स यूज्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन. यू नो, आप कौन सा भी प्रोडक्ट या सर्विस हो वो आप डिजिटली प्रमोट करके सेल उनकी बढ़ा सकते हो. डिजिटल मार्केटिंग हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स फ्रॉम सिंपल बैनर एड्स टू इंटरैक्टिव वीडियो कंटेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड जियो लोकेटेड सर्च रिजल्ट्स. नाउ डिजिटल मार्केटिंग टर्म में ये स्टार्ट हुई थी सिंपल बैनर एड से. उसके बाद ये डेवलप हुआ है. आजकल वीडियो कंटेंट ज्यादा चलता है. अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको वीडियो एड्स बहुत दिखेगी. क्यों वीडियो एड्स लोग लगाते हैं? क्योंकि वो मोर एंगेजिंग होते हैं एज कम्पेयर टू बैनर एड्स. बैनर एड्स का मतलब है जो क्रिएटिव, जो सिर्फ इमेज होती है. तो वीडियो एड्स ज्यादा एंगेजिंग रहती है, तो उसमें ROI अपना ज्यादा मिलता है. तो वीडियो एड्स ज्यादा लोग लगाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. और स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट्स लोकेशन पे भी हम टारगेट करके वो एड्स चला सकते हैं, ताकि हम हमारे बिजनेस के लिए एग्जैक्ट ऑडियंस पा सके. अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग. Digital marketing is the umbrella term for all actions taken on digital platforms by an organization with the aim of reaching current and potential customers. Thus, it includes different activities ranging from advertising to business development and sales. In today's competitive world, it has become increasingly important for businesses to compete on a global level by using digital communication platforms such as websites, social media profiles, mobile application, etc. अभी जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं या आप जो फील्ड में काम करने वाले हो, देखो ये एक समंदर की तरह है. एक क्लियर बताना चाहूंगा मैं, एक समंदर की तरह है. यहाँ पे कोई भी कंपटीशन या कॉम्पिटिटर ये चीज होने वाली है, लेकिन वो हमें अफेक्ट नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम यहाँ बैठ के हम कनाडा का, US का, मुंबई का, पुणे का, कहाँ का भी क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं. और बिजनेसेस अभी बढ़ रहे हैं और हमें कंपटीशन नहीं है. आपका बिजनेस तब बढ़ेगा या आपके क्लाइंट्स आपको तब काम देंगे जब आपका स्किल सेट बढ़ने वाला है. तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल्स पे ध्यान देना है. उसके बाद अगर आपके स्किल्स डेवलप हो, उसके बाद आपको क्लाइंट्स, आपके खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्लाइंट्स को पिच करने में. और यहाँ पे आपको ये प्लेटफॉर्म्स मदद करेंगे. अभी मैं यहाँ पे बैठ के मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकता हूँ US का भी. वो कैसे ला सकता हूँ? फेसबुक एड्स, गूगल एड्स यूज करके. तो वहां पे ये इतना पावरफुल है. अभी आप बोलोगे कि फेसबुक कोई ज्यादा यूज नहीं करता. फेसबुक इज द बिगेस्ट मार्केट राइट नाउ. क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सिर्फ पेड एड्स करके नहीं, ऑर्गेनिक मेथड्स यूज करके भी अच्छे क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हैं फेसबुक का यूज करके. सो वी यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर टारगेटिंग डिफरेंट एज ग्रुप्स. सो अभी आप मान के चलिए 35 का आगे का एज ग्रुप रहा तो हम फेसबुक यूज कर सकते हैं. उसके अब हमें यंग एज क्राउड हमारा ऑडियंस है तो हम इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें एडवर्टाइज करना है. So we'll start with lecture 1, your success journey with digital marketing. What we will cover in this lecture. Now पहले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स का स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया है और वो आपको कैसे हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप. व्हाट इज द रेसिपी फॉर सक्सेस फ्रॉम दिस कोर्स. अभी कोर्स में सिर्फ आप कोर्स करोगे और आपको क्लाइंट्स आने चालू हो जाएंगे या आप आपका इनकम चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है.
इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे। कोर्स, बुक्स, हाउ टू मैनेज योर लर्निंग, कोर्स भी है मेरा, और उसके बाद में बुक्स भी 2-3-4 बुक्स है वो मैं आपको रेफर करने वाला हूँ, वो आपको बाय करके रीड करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि बुक्स से आपका नॉलेज बहुत सारा बढ़ेगा, वो इंपॉर्टेंट बुक्स है, अपने फील्ड के रिलेटेड है। हाउ विल यू वर्क विद क्लाइंट्स, ब्रीफ समरी, आप क्लाइंट के साथ कैसे काम करोगे इसकी एक समरी भी मैं देने वाला हूँ। मैथ टू $8,000 पर मंथ एज अ फ्रीलांसर ना, आप 8K आप मंथली कैसे कमा सकते हो, इसका एक हमने मैथ बनाया, और अभी इंडस्ट्री में लोग कर रहे हैं इतना रेवेन्यू जनरेट पर मंथ, वो कैसे कर सकते हो आप, ये भी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड, 4 में एक ऐसी 4 चीजें बताने वाला हूँ, वो आप माइंड में रखोगे। स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, तो developing your marketing skills comes before acquiring clients. You first develop your expertise. जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि आपको पहले स्किल्स बिल्ड करनी है आपकी खुद की, उसके बाद आपको एक्सपर्टीज बढ़ाने के बाद आपको क्लाइंट एक्विजिशन टेक्निक के पास मुड़ना है। मैं अभी मैंने कोर्स स्ट्रक्चर भी हमने ऐसा किया है कि पहले आपको जो भी टेक्निकल स्किल्स है वो आप कवर होंगे, उसके बाद जो क्लाइंट एक्विजिशन के टेक्निक्स हैं वो कवर होने वाले। तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक एड्स का आप एक्सपर्ट हो, तो आप किसी भी बंदे को ऐसा पिच कर सकते हो कि आप वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप उसका बिजनेस बढ़ाने वाले हो फेसबुक एड्स के थ्रू। द डिजाइन ऑफ द कोर्स इज क्वाइट स्ट्रेटेजिक। कोर्स की डिजाइन ही हमने ऐसे स्ट्रेटेजिकली बना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, आप इस फील्ड में पूरे नए हो, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपने लैपटॉप पहले कभी यूज भी नहीं किया होगा, तो भी आप इस कोर्स से आप अच्छे से खुद को बिल्ड करके आप क्लाइंट एक्विजिशन करके आप पैसे कमा सकते हो। द फर्स्ट थिंग वी टीच यू इज हाउ टू यूज सेल्स फनल्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड फेसबुक एड्स। ये सब टेक्निकल चीजें, क्या चीजें है? सेल्स फनल्स आप एक वेबसाइट मान के चलिए स्टार्ट में, इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड फेसबुक एड्स, ये स्किल्स है, ये आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको क्लाइंट एक्विजिशन का जो है थ्योरी लेक्चर्स एंड प्रैक्टिकल्स वो मैं लूंगा। देन वी इंस्ट्रक्ट यू ऑन हाउ टू गेट क्लाइंट्स, जैसे मैंने बताया, इंक्लूडिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो, एक्वायरिंग योर फर्स्ट पेइंग क्लाइंट एंड एक्सपेंड टू मेनी क्लाइंट्स। अभी स्टार्टिंग में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपने क्लाइंट्स हैंडल नहीं किए होंगे, आपको वहीं पे ऐसे स्टार्टिंग में पहला क्लाइंट लेने कैसा है इस सिचुएशन में, और आपको खुद का पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है, इसके भी मैंने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ। व्हाट इज द रेसिपी फॉर सक्सेस फ्रॉम दिस कोर्स? इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग, you are going to want to give up, ask questions, keep going, remember why you joined and do the work. There is no shortcut to success. ठीक है, आपको ये माइंड में एक पहली चीज डालनी है कि आपको जो भी जर्नी है वो चैलेंजिंग होने वाली है, कुछ भी आपको इजी ऐसे नहीं मिलेगा। सो अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। क्लाइंट्स अभी आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो, आप जॉब नहीं करने वाले, ऑलमोस्ट एवरीवन इज गोइंग टू डू फ्रीलांसिंग। अभी फ्रीलांसिंग में क्या होगा, आपको खुद से खुद क्लाइंट लेने पड़ेंगे। एक मंथ ऐसा आएगा आपको क्लाइंट्स नहीं होंगे, एक मंथ ऐसा आएगा आपको इतने क्लाइंट्स होंगे कि आप होल्ड पे रखोगे, आप होल्ड पे क्लाइंट्स रखोगे। तो अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं। ये रहा क्लाइंट्स का और बिजनेस का। उसके पहले जब आप टेक्निकल स्किल्स सीखोगे, प्रैक्टिकल करोगे, वो चैलेंजिंग होने वाला है, ये इजी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है इसमें। कीप डूइंग द वर्क, डोंट कंप्लेन, डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी, आस्क क्वेश्चंस while implementing. You can ask question when stuck. अभी मैं स्टार्टिंग में ही मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूँ कि आप निगेटिविटी या कोई स्प्रेड मत करो, आप कंप्लेंट मत करो। आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स में, या मैं बाद में सिखाऊंगा, तो आप क्वेश्चंस पूछो, कोई भी डाउट रहेगा तो। क्योंकि ये स्किल्स अभी मार्केट में वर्क हो रही है, हम वर्क कर रहे हैं,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकल करते नहीं है, जो बताते हैं हम वो करते नहीं है, और कंप्लेंट्स करते रहते कि यार वी आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स एंड ऑल। सो ऐसे नहीं वर्क होता। आप अभी मार्केट में हो तो आपको कुछ तो नया, कुछ तो स्मार्टली करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटर्स अभी पुणे में ही इतने हैं, जो मैं जिस चीज के मैं 30,000 पर मंथ लेता हूँ, उस चीज के 6,000 5,000 में भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो लोग, आपको क्लाइंट मुझे पूछते हैं यार ये तो 5,000 दे रहा है, तू 30,000 क्यों मांग रहा है? और मुझे देते हैं लोग। क्यों देते हैं? क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, मैं थोड़ा अलग काम करता हूँ, और जो मार्केट में वर्क करे एग्जैक्टली उसका क्लाइंट का गोल क्या है वो जान के उसको मैं रिजल्ट देता हूँ, इसलिए हम मार्केट में काम कर रहे हैं। तो आपको ये चीज जाननी है कि आपको काम करते रहना है। काम चैलेंजिंग होगा, आपको नए नए इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, उनको नए नए रिजल्ट्स में आपको सब नया होगा, तो ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग होगा। आप स्टार्टिंग में चैलेंजिंग होगा, तो आपको काम करते रहना है और निगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी है। जहां पे भी आपको डाउट है वहां पे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। कीप डूइंग द क्लाइंट एक्विजिशन प्रोसेस एवरी डे। Best way to sustain and scale your income, dedicate 1 hour a day minimum to getting clients. The most successful freelancers never stop looking for clients. More details in Get Clients module. So, आपको क्लाइंट एक्विजिशन का एक घंटा दिन में देना ही देना है। जो भी मैं स्किल्स सिखाऊंगा, एक थ्योरी है, एक फॉर्मूला है, वो आपको अप्लाई करना है डेली। तो उसका हमने स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी करके आपको चार्ट में प्रोवाइड करने वाला हूँ गेट क्लाइंट्स मॉड्यूल में। तो वो चीज आपको डेली 1 घंटा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपको 3 क्लाइंट अभी 1 महीने में मिले, आपको इनफ है। लेकिन अगले महीने एक क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया, एक का बिजनेस बंद हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आया, और आपके पास अगले महीने 0 क्लाइंट्स है। तो उस सिचुएशन में आपको सस्टेन करने के लिए आपको गेट क्लाइंट एक्विजिशन की टेक्निक जो हम फॉर्मूलेस बता रहे हैं, उसके लिए 1 घंटा डेली डेडिकेटेडली देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डेली 1 घंटा मिनिमम दोगे तो आपको क्लाइंट्स आते ही रहेंगे। और आपको जब ऐसा हो कि आप अभी फुल हो, आप नया क्लाइंट ला नहीं सकते, तो अगले क्लाइंट को आप होल्ड पे रख सकते हो। अभी दिसंबर में एक क्लाइंट आया है, उसको बोल सकते हैं वी कैन स्टार्ट इन जनवरी, 1 जनवरी। सो आपको गेट क्लाइंट का ये भी डेली का जो टास्क होगा वो करते ही रहना है। कोर्सेस एंड बुक्स। अभी कोर्सेस में होगा, पहला तो फर्स्ट प्रायोरिटी है लेवल अप बाय एनोम कोर्स। जो मैं कोर्स पढ़ाने वाला हूँ आपको वो रहेगा। उसमें जो भी मैं पीपीटीज है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो आप गो थ्रू जाइए। अभी मैं सिखाते वक्त आपको एक पेन और एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हो। और ये जो है, ये बुक्स है सेल लाइक क्रेजी, आप ये नोट डाउन कीजिए 3 बुक प्लीज। सेल लाइक क्रेजी, सैबरी सुबी इनके ऑथर है, .com सीक्रेट्स एंड एक्सपर्ट सीक्रेट्स। ये 3 बुक आप 1 बाय 1 पढ़िए। सेल लाइक क्रेजी आपको ये अमेजोन पे इजीली मिलेंगे। पहले आप ये बुक बाय कीजिए, ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ये .com सीक्रेट्स। .com सीक्रेट के ऑथर है .com सीक्रेट्स के ऑथर है वो क्लिक फनल एक सॉफ्टवेयर है, वो जिन्होंने बिल्ड किया है वो उन्होंने ये बुक्स राइट की है, .com सीक्रेट एंड एक्सपर्ट सीक्रेट। तो आपको एक फनल कैसे कोई भी बिजनेस को 0 से $1,000,000 तक लेके जा सकते हो, वो सब सीक्रेट्स इन 2 बुक्स में है। आपको कोई भी अलग तीसरा चौथा बुक्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। जब आप ये 3 बुक्स सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टिंग में ये 3 बुक्स आप पढ़िए, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये आप हमारा सिलेबस के सीक्वेंस में ही पढ़े फर्स्ट हाँ, यस। आप आज ही आप बुक ऑर्डर कर सकते हो सेल लाइक क्रेजी, आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। मैं आपको ग्रुप पे लिंक। इनका एडिशन वेरिएशन तो नहीं है ना सर? कुछ 2-3 वेरिएशन भी आते हैं, कोई पहला एडिशन रहता है, कोई बाद का रहता है। नहीं, या एक तो ही फिर आप व्हाट्सएप में स्क्रीन शेयर या तो ऑथर लिख देंगे बाद में क्लास नहीं, के मैं बाद। क्या करता हूँ अमेजोन के लिंक्स भेज दूंगा आपको हाँ ग्रुप। हाँ, वो कर दीजिए, दैट विल बी इजी। या ग्रुप में अमेजोन का लिंक भेज दूंगा तीनों बुक्स का। आप एक स्टेप बाय स्टेप जाइए, पहले ये बुक लीजिए, वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद .com सीक्रेट एंड एक्सपर्ट सीक्रेट्स के लिए जाइए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि
ए 1 by 1 लेने के बाद आप तीनों बुक बाय करोगे लेकिन पढ़ोगे एक भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। डेली आपको 1 घंटा या आधा घंटा, कोई भी हो, 10 पेजेस हो, कोई भी, आप एक गोल डिसाइड कीजिए और वो पढ़िए। वो क्यों करना है? क्योंकि आपको हेल्प हो जाएगा अगले लेक्चर्स के में, कि आपको इजीली एक्वायर भी कर सकते हो, और आपको एट द सेम टाइम कोर्स चलते वक्त आप नए क्लाइंट्स भी ले सकते हो। इतना पावरफुल है। तो मैं जो जो बोलता हूँ वो आप सीरियसली लेके करिए। हाउ विल यू वर्क विथ क्लाइंट्स? ब्रीफ समरी। लर्न एंड इम्प्लीमेंट स्किल्स। पहले आप स्किल्स सीखोगे इस कोर्स के थ्रू, इसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे। प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आपको ये रास्ता नहीं बताने वाला हूँ, रास्ते पे चलना कैसा है, उसमें क्या क्या डाउट्स आने वाले हैं, उसमें क्या क्या आपको तकलीफें आने वाली, वो सब इसमें कवर होगा। और एट द सेम टाइम मैं आपसे प्रैक्टिकल करवा के भी लूंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा, वो भी आपको करना है। बिल्ड अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्यों बिल्ड करना है? क्योंकि क्लाइंट लेने से पहले क्लाइंट को एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना उसके मन में जरूरी है। क्लाइंट आपको 30,000 40,000 पर मंथ देने वाला है। क्यों देगा वो आपको? क्योंकि वो आपका पोर्टफोलियो देखेगा। पोर्टफोलियो में क्या आएगा? पोर्टफोलियो में आपका प्रीवियस वर्क आएगा। आपने कोई भी प्रीवियस क्लाइंट के साथ काम किया होगा तो उसका वीडियो टेस्टिमोनियल आएगा, या टेक्स्ट में टेस्टिमोनियल होगा, वो आएगा। आपने जो जो डिजाइन्स बनाए होंगे, या आपने फेसबुक एड्स लगा के रियल एस्टेट क्लाइंट्स के लिए इतने इतने पैसों में मैंने इतने लीड्स आई है और इतना कन्वर्जन हुआ है, ऐसा डिटेल्ड पोर्टफोलियो आपका होगा। वो कैसे बिल्ड करना है वो मैं पहले स्टार्ट में बताऊंगा आपको। गेट योर फर्स्ट टेस्टिमोनियल इन एक्सचेंज फॉर अ फ्री ट्रायल। अभी टेस्टिमोनियल एक चीज ऐसी है, जब आप काम करोगे किसी के लिए तो वो आपको टेस्टिमोनियल देगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में कोई भी बंदा हो, कोई भी आपका फ्रेंड हो या आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो, तो उसको एक फ्री ट्रायल के एक्सचेंज में टेस्टिमोनियल उससे मांगना है। वो वीडियो टेस्टिमोनियल आप प्रेफर कर सकते हो, वो ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करता है। आपको पैसे नहीं लेने हैं स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक एड्स का क्लाइंट लिया रियल एस्टेट का, उसको आप 1 महीना सर्विस दो, उसके बदले में उसको रिजल्ट्स मिलने के बाद उससे टेस्टिमोनियल लो। क्यों? ये आप फ्री का मतलब फ्री नहीं करने वाले, उसके बदले में टेस्टिमोनियल लोगे, वो आपको अगले क्लाइंट्स, अगले 10 11 12 15 क्लाइंट्स लाने में वो आपको एक टेस्टिमोनियल हेल्प करेगा, जिसके लिए आप काम करने वाले। तो आपको स्टार्टिंग में क्लाइंट ऐसे लेना है, एक्सचेंज में टेस्टिमोनियल के। कोई भी आपको स्टार्टिंग में विदाउट एनी रिजल्ट्स पैसे नहीं लेने वाला। अगर देगा भी तो वो मिनिमम देगा, ज्यादा पैसे नहीं देगा। वो आप माइंड बना के चलिए। और पहले 2 3 जो भी क्लाइंट्स होंगे उससे टेस्टिमोनियल लेनी है। मैं अभी भी मेरे क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स लेके रखता हूँ और मैं मेरे प्रोफाइल्स पे पोस्ट करता हूँ। और कोई भी थर्ड पर्सन या मेरा क्लाइंट होता है, वो होने वाला होता है, वो मेरी प्रोफाइल चेक करता है। प्रोफाइल पे मेरे वीडियो टेस्टिमोनियल्स या टेक्स्ट टेस्टिमोनियल्स, मेरा काम, मेरी वेबसाइट, ये सब चीजें देखता है। देखो, मैं मेरे सर्विस के बारे में कितना भी चिल्ला के बताऊं कि मैं अच्छा देता हूँ, मेरे अच्छा सर्विस है, आप ले लो, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट करेगा भी क्यों, कब करेगा? जब थर्ड पर्सन आपके सर्विस के बारे में एक अच्छी बातें कर रहा हो तब। तो टेस्टिमोनियल आपके लिए गोल्ड है, वो आप लेते ही, वो आप कलेक्ट करते ही जाना है आपको। गेट योर फर्स्ट पेड क्लाइंट। अभी टेस्टिमोनियल के बाद आपको पेड क्लाइंट लेना है। पेड क्लाइंट मिलना इजी हो जाएगा आपको, एक भी टेस्टिमोनियल होगा तो। मैं आपको बताऊंगा फॉर एग्जांपल एक फनल बिल्ड कैसे करना है। फनल बिल्ड कैसे करना है? फनल एक ऐसी चीज है जिससे अपने क्लाइंट को, यानी कि बिजनेस ओनर को, वो उसका एक शॉप की तरह है। उससे उसको क्लाइंट आने ही वाले हैं, आते ही रहेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के लिए उसका एक हाई कन्वर्टिंग फनल तैयार हो। तो मैं तो अभी आपको सिखाऊंगा फनल बिल्ड कैसे करना है। तो वो आप पहले स्टार्टिंग में उसके लिए अगर फ्री कर दोगे ना, तो आपको एक बहुत वैल्यूएबल टेस्टिमोनियल उसके साथ से मिलेगा। और वो फनल का स्क्रीनशॉट या वो सब चीजें लेके आप अगले क्लाइंट को पिच कर सकते हो, जिससे आप $500,000 आप चार्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अभी कॉन्फिडेंस है, आपके पास वीडियो टेस्टिमोनियल है, और जो काम आपने किया है उसका आपके पास पूरा प्रूफ है। सेम गोes फॉर फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स,
तो स्केल टू मल्टीपल क्लाइंट्स ईच मंथ। अभी आपके पास टेस्टिमोनियल आ गया, आपके पास पेड क्लाइंट, पहला पेड क्लाइंट आ गया। नाउ अभी आपको स्केल करना है मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए। आप 3 4 5 क्लाइंट्स, 10 क्लाइंट्स पे आप इजीली खुद वन मैन आप हैंडल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपको स्टार्टिंग में फेसबुक एड्स के 10 क्लाइंट्स आप ले सकते हो। फेसबुक एड्स एक ऐसा स्किल है कि आपको पूरा उसमें घुस के दिन भर बैठना नहीं पड़ता। एक बार आपने सेट किया, उसके बाद सिर्फ आपको मॉनिटर करना होता है कैंपेन्स कैसे चल रहे हैं, कौन सा कैंपेन अच्छा चल रहा है, कौन सा कम अच्छा चल रहा है। तो एट द सेम टाइम आप खुद 10 क्लाइंट हैंडल कर सकते हो अगर आप उस चीज में एक्सपर्ट हो तो। 10 क्लाइंट्स के आपको इनफ है, मोर देन इनफ है। आपको बाकी कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं to $8,000 per month as a freelancer. 6-figure freelancing goal. अभी your goal is $100,000 per year. तो हम अगर ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे पर मंथ के हिसाब से तो 8,333 पर मंथ आएगा। फॉर सिंप्लीफिकेशन अज्यूम $8,000 पर मंथ। 8,000 आपका, अगर ये गोल है कि $100,000 आपको ईयर में आपको कमाना है फ्रीलांसिंग में, तो आप पर मंथ होगा उसका $8,000 पर मंथ। तो स्टार्ट स्मॉल विथ योर गोल्स। इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, $8,000 सीम्स लाइक अ लॉट, आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा ये। फर्स्ट कीप द गोल ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट $500, then $1,000 पर मंथ एंड सो ऑन। स्टार्ट में आपको कोई भी आके $2,000 नहीं पे करेगा, ये ले मेरा काम करे, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको पहले स्टार्ट करना है $300, $500 में। मेरा स्टार्टिंग का पेड क्लाइंट था इंटरनेशनल का $270 समथिंग कुछ तो था। इवन मैं इंडियन क्लाइंट के साथ काम करता था। क्यों? क्योंकि मैं सीख रहा था। मैंने खुद से मेरे जो भी टेक्निक्स है इंटरनेशनल क्लाइंट्स एक्वायर करने के, वो हमने खुद हमारे एजेंसी में डेवलप किए हुए, अलग अलग कोर्सेज बाय करके वहां से डेवलप किए हुए। तो मेरे लिए वो नया था। आपको मेंटोर है आपके सामने, हम अभी कर रहे हैं। मैं अभी मैक्सिमम 2,000-2,500 पर मंथ के क्लाइंट्स भी मेरे पास है। तो वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो स्टार्टिंग आपको कम से ही करनी पड़ेगी। $200 to $30, $300, $500 वहां से स्टार्टिंग करनी है। और आप कब $1,000 $2,000 तक जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो डिवाइड योर गोल। अभी आपका ये गोल होने वाला है, तो आपको पर मंथ ये गोल अचीव करना है। तो ये अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड योर गोल इनटू स्मॉलर चंक्स। एग्जाम्पल, $8,000 month can be achieved by either $500 के आप 16 क्लाइंट्स ले सकते हो, डन फॉर यू। अभी डन फॉर यू और डन विथ यू, ऐसे दो टाइप्स आपको सुनने में आगे आ जाएंगे। डन फॉर यू एक क्या चीज है? डन फॉर यू मतलब क्लाइंट्स के लिए हम काम करते हैं। एक कोच है फॉर एग्जांपल, उसके लिए उसने हमें फनल डिजाइन का काम दिया है, तो फनल डिजाइन का हम उसका पूरा वो कोई भी देखेगा नहीं उसमें, उस काम का वो सब काम हम करके उसको डिलीवर करेंगे। इसको बोलते हैं डन फॉर यू। और एक अलग दूसरा कंसेप्ट है डन विथ यू। डन विथ यू कंसेप्ट क्या है? डन विथ यू में उसके साथ हम काम करते हैं। अगर फेसबुक एड्स उसको लगाना है तो उसको भी उसके एड अकाउंट पे उसके साथ 1-to-1 कॉल पे हम उसके साथ काम करते हैं, उसको डन विथ यू बोलते हैं। तो डन विथ यू और डन फॉर यू, उसके लिए काम करना और उसके साथ काम करना, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। आप 16 क्लाइंट ले सकते हो $500 के, या आप 8 क्लाइंट्स $1,000 के ले सकते हो। 5 क्लाइंट आप $1,500 के ले सकते हो, डन फॉर यू। प्लस एक $500 कंसल्टिंग का कॉल ले सकते हो, स्ट्रेटेजी कॉल्स ओनली, नो डन फॉर यू। स्ट्रेटेजी अभी कंसल्टिंग कॉल्स पे भी लोग बहुत पे करते हैं। क्योंकि मेरा एक क्लाइंट था जिसको पिक्सेल नहीं आता था। पिक्सेल एक ऐसी चीज, पिक्सेल आप अभी मैं बताऊंगा नहीं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो फेसबुक एड्स का एक पिक्सेल पार्ट है, वो उसमें कंफ्यूज हो रहा था। पिक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक फनल के ऊपर, वेबसाइट पे ऊपर ट्रैफिक ले जाके वहां से सेल्स चाह रहे तो उसमें मैंने स्ट्रेटेजी कॉल किया था, उसको कंसल्ट किया था। उसके मैंने चार्ज किए थे $600 सॉरी। तो $600 उसने पे किए। क्यों किए? क्योंकि उसको लाइफ टाइम वो वैल्यू, ये वो नॉलेज अभी उसको मिलने वाला था। और मेरे एक्सपर्टीज ऐसे थे कि मैंने उसको डन विथ यू मतलब उसके साथ काम करके उसको मैंने सिखाया कि एग्जैक्ट पिक्सेल बनाना कैसे है,
और वो उसके बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता है। तो ये 2-3 घंटे का कॉल रहता है, स्ट्रेटेजी कॉल, उसके भी लोग पे अच्छा करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो $1,500 के 5 क्लाइंट, $500 कंसल्टिंग का, या डायरेक्टली आप $2,000 के 3 क्लाइंट्स लेके और $1,000 के 2 कंसल्टिंग कॉल्स मंथली करके वो आप $8,000 का गोल अचीव कर सकते हो। हिंट, अभी हिंट क्या है, इंक्रीज योर प्राइस विथ एवरी क्लाइंट, योर वर्थ इंक्रीजेस विथ ईच क्लाइंट एक्सपीरियंस। अभी आप स्टार्टिंग में चार्ज करोगे $500, $400 पर क्लाइंट पर मंथ। अगले अगले क्लाइंट के लिए पर मंथ आपका चार्ज होना चाहिए $700 to $800 पर मंथ। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी आपके पास एक्सपर्टीज है, अभी आपके पास टेस्टिमोनियल है, अभी आप मोर कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को पिच कर सकते हो कि ये आपका बिजनेस है, तो ये मैं इसके ऊपर मैं अच्छा सा ROI आपको दे दूंगा या दे दूंगी। क्यों, कैसे दे दूंगी? आपको इतना बजट, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि इतने इतने बजट में इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं, इतने लीड्स आ रहे हैं, तो उसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो आपको पहले क्लाइंट में वो एक्सपर्टीज आ जाएंगे और आपके एक्सपर्टीज खुद से बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे आप नए नए क्लाइंट के साथ काम करोगे तो आपकी खुद के एक्सपर्टीज बढ़ेंगे। इसके लिए आपको प्राइस बढ़ाना ही होगा। मैंने 2017-18 में स्टार्ट किया था, मेरा क्लाइंट ₹7,000 का था, ₹7,000 पर मंथ, रियल एस्टेट का था, पुणे का। तो ये चीजें ₹7,000 से मैं अभी यहाँ तक आया हूँ। तो जैसे जैसे मेरे एक्सपर्टीज बढ़े हैं तो वैसे वैसे मैं मेरा सर्विस चार्ज भी बढ़ाते जा रहा हूँ। तो ये सेम चीज आपको करनी है। 4 important things to keep in mind. The only 4 things that matter is build your skills. First of all, build your skills, build a mindset. अभी स्किल्स कैसे बढ़ाओगे आप? मेरा कोर्स और जो मैंने बुक्स 3 आपको बताए हैं वो, ये 3 बुक्स और एक मेरा कोर्स। आपको बाकी बाहर कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी एक यूडेमी का फ्री कोर्स, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप, मैं कैसे बोलूंगा, मैं जो भी बोलूंगा वो करते जाइए। आप वो जो मैंने बुक्स बोले हैं वो पढ़िए, उसके बाद आपको स्किल्स, अभी ये पार्ट तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद है बिल्ड अ माइंडसेट। माइंडसेट का लेक्चर मैंने पहले इंक्लूड किया है। उस माइंडसेट लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ आपको फ्रीलांसिंग या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज हो, उसके लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए और कैसे आप कर सकते हो। वो पहले मैंने, अभी ये मेरा काम नहीं है कि आपको माइंडसेट लेक्चर सिखाना। अभी टेक्निकल सिर्फ मैं बता सकता था आपको। माइंडसेट लेक्चर मैंने क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि बेसिक कोई भी चीज, कोई भी जॉब हो, फ्रीलांसिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, या कोई आपको एथलीट बनना है, या कोई भी एक गोल आपको अचीव करना है ना, उसके लिए आपको लगता है पहला एक माइंडसेट, वो आपका क्लियर हो, वो आपका स्ट्रांग हो, तो उसके बाद आप कोई भी चीज कर सकते हो। कोई भी आपका $100,000 का जो ईयरली गोल रहेगा वो आप अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए, इस पे भी मैं गाइड करने वाला हूँ आपको। थर्ड चीज है जनरेट डिस्कवरी कॉल्स। डिस्कवरी कॉल्स एक कंसेप्ट ऐसी है, डिस्कवरी कॉल्स का मतलब है 1-to-1 क्लाइंट के साथ मीटिंग। जनरेट डिस्कवरी कॉल्स का मतलब ये है, जो मैं आपको पहले 2-3 स्लाइड्स के पहले बता रहा था, कि आपको डेली क्लॉकवर्क टास्क करने हैं क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, क्लाइंट आपको पाने के लिए। वो एक ऑर्गेनिक मेथड रहेगी। फेसबुक, आपको उस फेसबुक और लिंक्डइन का इस्तेमाल करके आपको डिस्कवरी कॉल जनरेट होंगे। डिस्कवरी कॉल्स एक ऐसी चीज है, आपका जूम लिंक होगा और उसके ऊपर आपका एक आइडियल क्लाइंट, आपका आइडियल ऑडियंस आपके साथ मीटिंग करेगा और आप उस कॉल पे उस क्लाइंट को क्लोज करोगे। उसको बोलते हैं डिस्कवरी कॉल। तो डिस्कवरी कॉल आपको जनरेट करने, जितने ज्यादा जनरेट कर सकोगे उतने ज्यादा डिस्कवरी कॉल्स आप करोगे, उतने ज्यादा आपको क्लोजिंग होगे। तो एक एवरेज इंडस्ट्री एवरेज है कि 5 डिस्कवरी कॉल अगर आप करोगे तो उसमें से एक कॉल क्लोज होगी, एक क्लाइंट आपको काम देगा। 5 कॉल्स करने, 5 मीटिंग्स आपको करनी पड़ेगी, 5 लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आपको एक क्लाइंट मिलेगा। मेरा अभी 2-3-4 भी होते हैं 5 मीटिंग्स में। क्यों? क्योंकि मैं अभी जानता हूँ उसका बिजनेस क्या है, उसको कैसे बढ़ाना है। मैं उसको बोलता हूँ इतने इतने पैसे डाल, इतने इतने पैसे में कमा के तुझे दे सकता हूँ। तो मैं ज्यादा करता हूँ। स्टार्टिंग में आप एक एवरेज पकड़ के लीजिए, 5 में आपका एक क्लाइंट क्लोज होगा।
डू डिस्कवरी कॉल्स, आपको डिस्कवरी कॉल जनरेट करने हैं, उसके बाद डिस्कवरी कॉल अटेंड भी करने हैं। कि अभी क्लाइंट का अभी अगर आप इंडियन क्लाइंट्स होगे तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट्स होगे तो टाइम का कंफ्यूजन हो जाएगा, टाइम का इशू आ जाएगा। उनके यहाँ अभी मैं अभी 11-11, 12-12 में रात में 1-1 बजे भी मीटिंग्स करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि उनके वहाँ वो जिस टाइम पे कंफर्टेबल है उस टाइम पे हमें मीटिंग्स करनी पड़ती है। तो वो आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका खुद का कैलेंडली का लिंक, कैलेंडली का मतलब है आपका खुद का टाइम कैसे सेट करना है, उसके ऊपर उसका जो टाइम रहेगा आप अपने आइडियल क्लाइंट का, वो अपना लिंक के ऊपर वो क्लाइंट डायरेक्टली मीटिंग आपके साथ बुक करेगा। तो आप पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको स्केड्यूल में, डेली स्केड्यूल में जो जो फ्री स्लॉट्स रहेंगे वो उसमें डालने हैं। उसके बाद वो स्पेसिफिक लिंक क्लाइंट को भेजनी है। वो खुद से उसका कंफर्टेबल टाइम पे यहाँ पे टाइम बुक करेगा और आपका डिस्कवरी कॉल ये हो जाएगा। वो जूम पे ही लेना है। जूम इज अ फ्री प्लेटफॉर्म और आप स्टार्टिंग में फ्री प्लेटफॉर्म पे आप क्लाइंट के साथ मीटिंग कर सकते हो और उनको क्लोज कर सकते हो। तो आपको पहले स्किल्स बिल्ड करने हैं, जो मैंने कैसे बताया वो बताया आपको। कोर्स से और बुक से आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना है स्टार्टिंग में, ताकि आप कोई भी अप्स या डाउन से कोई भी उससे गो थ्रू कर सकोगे। और आपको थर्ड थिंग है डिस्कवरी कॉल्स जनरेट करने हैं और उसको अटेंड भी करने हैं, ताकि आप कंसिस्टेंटली आप क्लाइंट्स ले सकोगे। फ्रीलांसिंग में अगर पॉइंट पे जाओगे, एक अच्छा आपको क्लाइंट का एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स एक्वायर करोगे, तो उसके बाद आप एजेंसी भी खुद की स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं स्टार्टिंग में प्रेफर ये आपको बोलने वाला नहीं हूँ कि इतने इतने इन्वेस्ट करो और एजेंसी ओपन करो, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि मुझे मेरी खुद की एजेंसी भी ओपन करनी है, ऐसे करना है वैसे करना है। मत करो। आप सोलो एक आदमी एक लैपटॉप के साथ एक अच्छा इनकम बना सकते हो। वो करने के बाद आपकी स्किल्स बढ़ने के बाद आप हायरिंग चालू करो, वो भी आप रिमोटली कर सकते हो स्टार्टिंग में। उसके बाद क्योंकि जितना आप कॉस्ट कटिंग करोगे, जितना आप कॉस्ट, क्योंकि देखो हम काम करते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, हमें यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, जो भी पैसे आने वाले हैं वो डायरेक्टली हमारे जेब में आने वाले हैं, ना कि हमें किसी को देने हैं या कोई हमें रॉ प्रोडक्ट खरीद के उसको उसके ऊपर काम करके उसके बाद उसको सेल करना है। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला या कोई भी चीज ऐसे नहीं होने वाली। एक क्लाइंट आपको $1000 पे करता है, वो डायरेक्टली आपके जेब में जाने वाले। और जो भी सॉफ्टवेयर से, फॉर एग्जांपल उसको वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट मतलब फनल बनाना है, तो फनल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर या होस्टिंग या डोमेन, वो सब इन्वेस्टमेंट रहते हैं। वो सब इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते, क्लाइंट करता है। तो सब ये चीजें हैं वो एक्सपेंसेस क्लाइंट की तरफ से होंगे। जो भी आपका स्पेसिफिक सर्विस चार्ज रहेगा वो आपका खुद का होगा, तो आपको कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला। तो जितना आपका कॉस्ट कटिंग कर सकते हो उतना अच्छा है। और आप स्टार्टिंग में खुद से ही काम करो, डिस्कवरी कॉल्स जनरेट करो, डिस्कवरी कॉल्स अटेंड करो। आपको कोई भी कहाँ पे भी जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Lecture 2, we'll start lecture 2. Let me see. Okay, we'll conduct lecture 2 tomorrow, बिकॉज ये अभी 6 फिगर फ्रीलांसिंग जर्नी का है, वहाँ पे अलग कंसेप्ट होने वाला है। तो यहाँ आपका आज के लेक्चर्स के जो भी ये है पीडीएफ है, वो मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप पे, आप वो देखिए। ओके, सो कोई किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर मुझे एक डाउट है, एक्चुअली डाउट नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी जब हम फनल जनरेट करेंगे, जैसे आपने बोला वेबसाइट बनाना पड़ेगा, ओके, करेक्ट? तो हमको होस्टिंग खरीदना पड़ेगा खुद के लिए अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तब? देखिए, फनल एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमें ट्रैफिक ले जाना पड़ता है। ट्रैफिक जाने के बाद वहां पे कोई भी एक्शन हम लेते हैं, या कोई भी एक्शन हो, वो सेल हो या प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन हो या
लीड्स कलेक्ट करना हो वो फनल के ऊपर होता है। हमें स्टार्टिंग में खुद के लिए मैं आपको प्रोसेस ऐसे बताने वाला हूँ फेसबुक पे के ऊपर, ऑर्गेनिक प्रोसेसेस, जहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लाइंट के साथ बात करके, आइडियल क्लाइंट आपके ऑडियंस के साथ बात करके आप क्लोजिंग करोगे। आप अभी मैंने मेरे एजेंसी है तो मैंने मेरे खुद के लिए मेरा एक फनल बनाया है। मैं आपको एक 2 मिनट स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा एग्जैक्टली फनल होता क्या है, क्योंकि ये फनल बार बार वर्ड यूज होता जाएगा। आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही। See, this is my funnel, my agency's funnel and all. Attention coaches, consultants and service providers. अभी ये क्या है, ये मेरे आइडियल ऑडियंस है जिनके लिए मैंने मेरे एजेंसी को निश डाउन किया है और इनके लिए मैं काम करता हूँ। सिर्फ उनको क्या सर्विस देता हूँ मैं, this is how you can get 200 to 400 high quality appointments or leads every single month for less than $5 each on autopilot. अभी कोचेस को, कंसल्टेंट को या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को क्या चाहिए, उसको लीड्स या अपॉइंटमेंट चाहिए, 1-to-1 मीटिंग्स चाहिए। और वो इसका ये पेन पॉइंट क्या है कि वो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन नहीं करना चाहता या कोल्ड कॉलिंग या कोई भी प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं चाहता। तो फनल एक चीज ऐसी है, ये एक बेसिक लैंडिंग पेज है। और वेबसाइट और फनल, इसमें फर्क क्या है कि वेबसाइट में आप देख सकोगे कि यहाँ पे होगा होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड आवर टीम एंड ऑल, ये सब चीजें होंगी। लेकिन फनल पे यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बटन दिखेगा और ये बार बार दिखेगा। ये बटन क्या है, बुक ए फ्री स्ट्रेटेजी कॉल। देखिए यहाँ पे भी मैंने डाला है। और ये फनल मेरा एक ही चीज एक्सप्लेन करता है। कौन सी चीज एक्सप्लेन करता है कि आप आपके बिजनेस के लिए कैसे अपॉइंटमेंट पर डे जनरेट कर सकते हो मेरे एक प्रोसेस के थ्रू। तो क्या प्रोसेस है वो भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है। तो क्लाइंट को पहले इस फनल के थ्रू मैं मेरी सर्विस पिच करता हूँ और यहाँ पे अगर वो क्लिक करता है, कौन से भी बटन पे क्लिक करता है, एक ही बटन है, वो डिस्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। अगर कोई भी मेरा आइडियल ऑडियंस यहाँ पे आएगा, फनल पे आएगा, तो वो बटन पे एक ही बटन उसको दिखेगा जो होगा बुक अ फ्री स्ट्रेटेजी कॉल। यहाँ से मैं बुकिंग्स लेता हूँ मेरे फ्री स्ट्रेटेजी कॉल पे और यहाँ पे मैं सबसे बड़ा मनी बैक गारंटी भी देता हूँ। क्यों देता हूँ, इससे मेरा ट्रस्ट फैक्टर गेन हो जाता है। अगर उसको 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं गारंटी के साथ उसको पैसे वापस कर देता हूँ। तो इतना ये एक मेरा सेल्स फनल है। और ये फनल आपको स्टार्टिंग में उसको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ये कब आपको कर सकते हो, जब आपको खुद के लिए आप ट्रैफिक जनरेट करना है, आपको मल्टीपल क्लाइंट्स लेने, आपकी एक एजेंसी है, तब आपको फनल की जरूरत पड़ेगी। तब तक आपको खुद के लिए फनल की जरूरत नहीं है। ये चीज आप सिर्फ क्लाइंट को पिच करो ये सर्विस और क्लाइंट के लिए ऐसे फनल बना के दो। क्लियर हुआ डाउट शुभांगी? Yes, sir. ओके, सर, यस। जब ये फनल हम मतलब बताएंगे तो इसको बैक करने के लिए कोई फिगर्स चाहिए, टेस्टिमोनियल्स चाहिए, तो वो प्रैक्टिकल नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा? मतलब बिना बिना प्रूफ के कि हमने, तो हमको कपल ऑफ क्लाइंट्स के वो काम दिखाने पड़ेंगे, इतना रिटर्न्स आया है, इतना, है ना? तो दैट इज उसके पहले, मतलब फर्स्ट क्लाइंट के पहले हम कैसे पिच करें कि दिस फनल वर्क्स, डजंट वर्क एंड हाउ मच इट वर्क्स? ओके, दैट इज ओके। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्लाइंट के लिए स्टार्टिंग में उससे पैसे लेने नहीं है, उसको आपको टेस्टिमोनियल के एक्सचेंज में उसको काम करके देना है, तो आप क्लाइंट विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू वर्क, क्योंकि उसको एक फनल भी डिजाइन करके मिल रहा है और उसको उसके लिए पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ रहे। तो पहला आपका क्लाइंट ऐसा रहेगा जिसके साथ आप फ्री में काम करोगे, ठीक है? तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर ही जाएगा और आपके पास एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल आ जाएगा। उसका यूज करके आप अगला एक पेड क्लाइंट क्लोज करोगे। सेम इंडस्ट्री का काम, इंडस्ट्री का कर सकते हो, एक अलग नीश में इंडस्ट्री कर का भी सकते कर सकते हैं। हो, क्योंकि फनल में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक डिजाइन और कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग का मतलब है, जो मैंने अभी देखो यहाँ पे फनल पे जो मेरी अभी हेडलाइंस है, सब हेडलाइन है, ये यहाँ पे वीडियो है, तो ये इतना कन्विंसिंग, इतना पावरफुल कॉपी है कि सामने वाला बंदा मेरे साथ कॉल बुक कर लेता है, ठीक है? तो ये कॉपीराइटिंग के एक फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है।
वो स्ट्रक्चर आप फॉलो करके आप कौन से भी इंडस्ट्री के लिए कॉपी लिख सकते हो। ये सिर्फ कोचेस के लिए या सिर्फ रियल एस्टेट के लिए या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ये वर्क नहीं होता। मैं कॉपी राइटिंग में आपको बताऊंगा कि कॉपी आपको फनल पे कैसी लिखनी है, वो उसका आप यूज करके कौन सा भी इंडस्ट्री हो, आपको पहले स्टार्ट करते वक्त करना है मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ काम करो। वो कोचेस हो, कंसल्टेंट्स हो, रियल एस्टेट हो, रेस्टोरेंट हो, रिसोर्ट हो, होटल्स हो, कोई भी मिले आप काम ले लो। आपको पता चलेगा आप कौन सी इंडस्ट्री में अच्छा रिजल्ट लाके दे सकते हो। उसके बाद आप निश डाउन करो। जितना आप निश डाउन करोगे उतना आप एक्सपर्ट बनोगे और उतना हाई एंड प्राइस आप आपके सर्विस के लिए चार्ज कर सकोगे। तो स्टार्टिंग प्रोसेस आपको ये होने वाला है कि आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज पहले ले लो, जो भी है वो ले लो। उसके बाद आपके एक्सपर्टीज डेवलप करो। उसके बाद आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री सिलेक्ट करके उसके बाद आप निश डाउन कर लेना। सर एक और डाउट है, जैसे आप बता रहे हैं कि एफबी और इंस्टा एड मैनेजर में डेप्थ में सिखाएंगे, तो इसके पहले रिसर्च का काम जो होता है वो टूल्स भी सिखाएंगे, बिकॉज रिसर्च इज द मेन एरिया दैट वी नीड टू गो इन डेप्थ। अगर नया क्लाइंट भी लिया, गारमेंट्स लिया या होटल इंडस्ट्री लिया, तो हर एक का इंडस्ट्री का नॉलेज रिसर्च करने का टूल्स वो भी सिखाएंगे सर? राइट। मेरा कोर्स में सिलेबस में मेरा एक टॉपिक है जहाँ इसका हेडलाइन ही यही है कि कॉम्पिटिटिव रिसर्च। कॉम्पिटिटिव रिसर्च का फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स लगाने से पहले आपको कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना है। तो वो मॉड्यूल अभी, वो टॉपिक अभी इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे आप सीख सकोगे कॉम्पिटिटिव रिसर्च कैसे करना है और कैसे उनसे भी अच्छा आपको आपकी एड या आपके क्लाइंट के लिए अच्छा काम करना है। तो आपको मैं बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अभी नाइकी है, आपको एक शूज का ब्रांड मिला, अभी नाइकी आपका आपका ये हो गया आइडियल, ये हो गया। तो वो क्या कर रहा है इंडस्ट्री में, वो कैसे एड्स चल रहा है, उनकी कॉपी क्या है, उनके हेडलाइंस क्या है, वो कैसे क्रिएटिव्स लगा रहा है या वीडियो एड्स रन कर रहा है। तो वो सब चीजें कैसे देखनी है वो सब मैं कवर कर लूंगा। उसके बाद आपको आपके खुद के क्लाइंट के लिए स्ट्रेटेजी बनानी। और जैसे पहले रिसर्च, फिर कैंपेन, फिर उसका जो एनालिसिस भी करते हैं उसमें भी क्योंकि अभी राइट नाउ मुझे सिर्फ गूगल एनालिटिक्स पता है ओके। और वो भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पता है। तो हमने 2 महीना डाला, किसी ने सपोज क्लाइंट ने बोला 10,000 $5,000 डाला है, परफॉर्मेंस बताओ, ऑडिट एनालिसिस रिपोर्टिंग बताओ कि हाउ मच कितने % कन्वर्जन हुआ है आपका। यस। तो वो रिपोर्ट बनाना वो सब कवर करेंगे सर? हाँ, रिपोर्ट बनाना इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि हमें फेसबुक एड्स मैनेजर पे सब रिपोर्ट रेडी मिल जाता है, इनसाइट्स आ जाते हैं। इनसाइट्स आ जाते हैं। वो सिर्फ हमें पीडीएफ में डाल के क्लाइंट को सबमिट करना है। तो आप सेल्स कैसे आप ट्रैक करोगे, जो मैंने बताया, पिक्सेल एक कंसेप्ट है, पिक्सेल लगा के आप सेल्स ट्रैक कर सकते हो। आपने रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली $100 बजट लगाया और आपको $1,000 का सेल्स मिला, तो वो आप पिक्सेल के थ्रू ट्रैक करके उसको आप रिपोर्ट दे सकते हो। तो उसमें दैट विल हेल्प फॉर इम्प्रोवाइजेशन आल्सो ना सर? तो ये 5,000 डाला है तो अगले महीने 10,000 डालो, तो योर रिटर्न्स विल बी लाइक दैट। सो एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं कि ये फनल से आपका एस्टिमेशन और 50% ग्रो हो सकता है, 30% सेल्स ग्रो हो सकता है। राइट, एग्जैक्टली। तो आप पहले स्टार्टिंग में मैं वही बताता हूँ, फेसबुक एड्स के लेक्चर में सब इंक्लूडेड है कि आपको मल्टीपल कैंपेन्स लगाने हैं। स्टार्टिंग में मल्टीपल कैंपेन्स क्यों लगाने हैं, क्योंकि वो एक टेस्टिंग पीरियड रहेगा आपका। तो उसमें से एनालिसिस करके मार्केटिंग का आपका रिजल्ट देके उसमें से जो भी विनिंग कैंपेन्स रहेंगे आपके, जो भी विनिंग एड्स रहेंगे, वो आपको स्केल करने हैं। बाकी के जो रहेंगे वो आपको बंद करने हैं। तो इस से आपको फेसबुक एड स्केल करने का, तो वो भी इंक्लूडिंग है इसमें। और कोई डाउट किसी को? So we'll conduct tomorrow 6-figure freelance journey, और बाकी उसके बाद माइंडसेट मॉड्यूल कवर हो जाएगा। उसके बाद कैनवा एंड ऑल सब डिजाइन का पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स कवर होंगे। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप सिर्फ गो थ्रू कीजिए। पहले आपका आज का टास्क है, आप पहले तो एक बुक ऑर्डर कीजिए और बुक्स रीड करना स्टार्ट कीजिए। आपका नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है, ट्रस्ट में। तो आप इसको निगलेक्ट ना करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ग्रुप में अपने लिंक भेज देता हूँ तीनों बुक्स के, आप जाके वो बाय कर लेना अमेजोन से, ठीक है? यस। ओके ओके, चलो।
Bye bye. Bye, sir. Thank you so much. Yeah. Sir, Thank you, sir. Yeah. Bye.